السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں البر چینل۔ میں ہوں محمد انصر۔ آپ دوستوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ دوستو، آپ لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو بالخصوص بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ اس کو بالخصوص فارغ ہو کر آپ اس کو دیکھیے گا، آپ کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دوستو، ہمارا جائز کیش کے حوالے سے کورس جاری تھا کہ ہمارے دوست احباب جن کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے، بجلی کے بل کیسے بھرے جاتے ہیں، موبائل لوڈ کیسے کیا جاتا ہے، گھر والوں کا لوڈ ہو گیا، اپنے دوستوں کا کسی کا بھی کرنا ہو لوڈ، کہیں جانے کی ضرورت نہ ہی پڑے آپ کو، تو اسی کے حوالے سے یہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا۔ تو دوستو، کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ ہمیں اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ نہیں آتا، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو دیکھیں، دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، اگر کوئی نیت کر لے تو وہ کام اس کے لیے بہت سہل ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے اگر وہ نیت کرے۔ اگر اس نے کسی چیز کی نیت نہیں کی ہے لیکن چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اس کے سامنے اس کو دے دیا جائے گا، وہ اس کو نہیں کر پائے گا۔ تو دوستو، کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، یہ تو اکاؤنٹ ہے، اس کو بنانا کون سا مشکل ہے، بہت آسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بڑے سے بڑا کام بھی انسان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بڑے سے بڑا کام بھی اس کو دے دیا جائے، کیونکہ انسان بہت بڑی چیز ہے، اس کے سامنے بڑے سے بڑا کام بھی رکھ دیا جائے وہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ دوستو، نمبر 3 پہ بات یہ آتی ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ بناتے وقت ڈرنا نہیں ہے کہ کہیں ہم سے اکاؤنٹ غلط نہ ہو جائے، ہم پتہ نہیں صحیح بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے۔ دوستو، ہم آپ کو جو انفارمیشن دیں گے، جو طریقہ بتائے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ 100% ہم آپ کو طریقہ صحیح طریقے سے بتائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو فیک طریقہ بتا دیں، بلکہ آپ کو بالکل 100% صحیح طریقہ بتائیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ چھوٹے موبائل پر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور بڑے پر کیسا بنانا ہے۔ طریقہ سیم ہی ہے، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پاس ٹچ موبائل وہ نہیں رکھتے ہیں، چھوٹا موبائل رکھتے ہیں، تو یہ موبائل چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ان دونوں کے اندر آپ کا اکاؤنٹ بن سکتا ہے۔ لیکن ہم سٹارٹنگ جو کریں گے وہ چھوٹے موبائل سے کریں گے، نہ کہ بڑے موبائل سے، کیونکہ جب چھوٹے موبائل میں آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے تو ہم آپ کو طریقہ تو دونوں کا بتائیں گے، لیکن اکاؤنٹ آپ سٹارٹ کریں گے چھوٹے موبائل سے، تاکہ جن کے پاس چھوٹے موبائل ہیں وہ ان کو صحیح طریقے سے جو ہے اکاؤنٹ بنانا سیکھ لیں، کیونکہ بڑے موبائل میں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ مشکل تو نہیں ہے، لیکن جن کے پاس چھوٹا ہے ان کے پاس بڑا نہیں ہوگا، تو وہ بڑے کی چکر میں چھوٹے مر بھی اکاؤنٹ نہیں بنا سکیں گے۔ تو دوستو، اس سے آگے والی بات ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں کہ اکاؤنٹ بن جائے گا، میں اس میں 5,000 رکھوں گا، میں اس میں 20,000 رکھوں گا، میں 50 رکھوں گا، میں 80,000 رکھوں گا، لاکھ رکھوں گا تو میرے پیسے کہیں غائب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم ایزی لوڈ کراتے ہیں، ایزی لوڈ کرانے کے بعد ہم نے 100 روپے کا ایزی لوڈ کرایا، اس میں 60 روپے کا نیٹ پیک ہی لگایا، تو باقی 40 روپے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے۔ لیکن اکاؤنٹ میں یہ سسٹم نہیں ہے، اکاؤنٹ میں ایک روپے کی گارنٹی ہوتی ہے۔ حالانکہ میں خود کافی عرصہ سے اس اکاؤنٹ کو یوز کر رہا ہوں، آج تک ان 6 7 8 سالوں میں 9 سالوں میں مجھے کبھی 1 روپیہ کا بھی کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ میرا 1 روپیہ کہیں گم ہوا ہو۔ تو اس کی تو گارنٹی ہم خود بھی دیتے ہیں، چاہے وہ اومنی کا اکاؤنٹ ہے جو کہ آپ پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اور چاہے کسی کا بھی اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ سے آپ کے پیسے کبھی غائب نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت بڑی کمپنی ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم اگر کسی کا 1 روپیہ بھی غائب کریں گے تو وہ آدمی ہم سے چلا جائے گا، اکاؤنٹ چھوڑ کے چلا جائے گا، ہم جو اس کے پیسے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو اگلی بات دوستو، آپ کو ہم یہ بتائیں گے
कि आपने ये जो अकाउंट बनाना है, आपको किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि आप अपने घर से भी बाहर ना निकलें तो भी आप इस अकाउंट को सरे अंजाम दे सकते हैं। आप इस अकाउंट को बना सकते हैं। आप इस अकाउंट को बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है। लोगों की बातों में नहीं आना। लोग आपसे कहेंगे भाई आप लोग फ्रेंचाइज में जाएं, आप लोग इजी पैसा की दुकान पे जाएं, आप लोग जैज़ कैश की दुकान पे जाएं। आपने कहीं पर भी नहीं जाना। आपने अपने घर के अंदर रहते हुए ही अकाउंट बनाना है। हाँ, अकाउंट नहीं बनता तो उसके ज़िम्मेदार हम होंगे। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं यही तरीका है। बस लोगों ने पैसे कमाने का ज़रिया बनाया हुआ है कि भाई उसके पास जाओ, आपको वो अकाउंट बना के देगा। आपको अकाउंट बना देगा तो 500 रुपया आपसे अकाउंट बनाने का ले लेगा। तो आपने अकाउंट खुद ही बनाना है। बनाने का तरीका अभी हम आपको इसी वीडियोस के अंदर बताएंगे। तो दोस्तों, दूसरी बात, इसके साथ एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने जब मोबाइल पर अकाउंट बना लिया है, एक काम आपका दुकान पर होगा। वो हर मोहल्ले में, आज के दौर में हर गली में, हर घर के करीब तकरीबन 2 मिनट की मुसाफत के करीब ही दुकानें होती हैं। हाँ, कोई अगर गांव में रहता है तो उसका मैं नहीं कह सकता हूँ। जो शहर में रहते हैं उनका मैं ज़रूर कहूँगा कि वो गली के अंदर ही उनकी दुकानें होती हैं, वहाँ पर जाएं। उनके पास एक मशीन होती है, उसको आपने ये कहना है कि मेरा अकाउंट वेरीफाई कर दें। वेरीफाई का मतलब ये होगा कि आपका अंगूठा लगेगा उसकी मशीन पर। उसके बाद जैसा कि आप सिम निकालते वक्त एक टिक का निशान होता है, तो वहाँ पर आपकी सिम पर, आपके अकाउंट पर वेरीफाई का निशान लग जाएगा। तो आप लोगों ने सिर्फ वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपने घर पे आ जाना है। वेरीफाई के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। वेरीफाई के कोई चार्जर नहीं लगेंगे। आप लोगों ने उसको कोई पैसे नहीं देने वेरीफाई करने के। वेरीफाई कंपनी की तरफ से फ्री होता है, आपने उसको फ्री करके घर पे आ जाना है। बस इतना काम था, ये हो गया काम ख़त्म। अब चलते हैं कि हम अकाउंट बनाएंगे कैसे। तो दोस्तों, अभी मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। तो मेरे साथ ही रहिएगा। और एक बात इससे पहले एक और बताऊँ कि ये सिर्फ आपका अकाउंट चाहे छोटे मोबाइल पे बनाओ या बड़े मोबाइल पे बनाएं, आपको ये अकाउंट सिर्फ एक दफ़ा ही बनाना पड़ेगा। ये बात नहीं होगी कि आपने मोबाइल पर एक दफ़ा छोटे पर मोबाइल पर अकाउंट बना लिया है और अब आपको बड़े पर अलग से बनाना पड़ेगा, या फिर आपकी मोबाइल गुम हो गया या सिम गुम हो गई तो फिर क्या आपको नए सिरे से वेरीफाई करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका अकाउंट एक दफ़ा बनेगा, आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा बनाना है और जब तक आप इसको यूज़ करना चाहें करते रहें। आपने अगर बंद भी करवाना है तो इसको बंद करने का भी बहुत आसान तरीका है, वो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हमने करना क्या है, अकाउंट बनाने के लिए करना क्या है। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले हर मोबाइल के अंदर फ़ोन का ऑप्शन होता है जहाँ पर फ़ोन किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने अपने मोबाइल के अंदर फ़ोन वाली जगह को ओके कर लिया है। आपके सामने मैं आपको निशान भी लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये मोबाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर हम फ़ोन करते हैं। आपने इस जगह पर आ जाना है, आपने इसको ओके करना है। मैं अब इसको ओके करने लगा हूँ। ये मैंने ओके कर दिया है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने *786#। ये टोटली 3 नंबर्स हैं, 786। शुरू में स्टार, आखिर में हैश है। आपने क्या करना है, आपने ये मिलाने के बाद आपने इसको कर देना है ओके इस बटन के साथ। मेरा चूँकि जैज़ की सिम 1 में है तो मैं इसको करने लगा हूँ ओके। ये मैंने कर दिया इसको ओके। देखें, रनिंग यूज़ कोड लिखा हुआ आ रहा है। अभी आप देखें जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी,
लिखा हुआ आ रहा है डियर कस्टमर योर अकाउंट रजिस्टर रिक्वेस्ट इज़ इन प्रोसेस प्लीज़ इंटर योर NIC इशू डेट। आगे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपका काम सिर्फ यहाँ पे होगा जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है DDMY 4 दफ़ा Y है, 2 दफ़ा M है, 2 दफ़ा D है। D का मतलब, पहली D का मतलब होगा कि आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर इशू डेट, मतलब जहाँ पर हमारे अगर उर्दू का कार्ड होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है तारीख़ इजरा, और अगर आपका इंग्लिश कार्ड बना हुआ है, स्मार्ट कार्ड है, तो उस पर लिखा हुआ आता है इशू डेट। तो आपने वो इशू डेट इस जगह पर डालनी है। मसलन आपके शनाख्ती कार्ड पर अगर डेट डाली हुई है, मिसाल के तौर पर मेरे NIC पर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जो डेट डाली हुई है, मसलन वो डाला हुआ है 0, तो मैंने इस जगह पर पहले D की जगह पर 0 डाल देना है। और दूसरा अगर डाला हुआ है 1, तो मैंने इस D पर वो लगा देना है 1। ये है तारीख़। आगे मंथ यानी कि महीना, तो महीना मसलन मेरा यकम ही है, तो वो शुरू में चूँकि 0 होगा तो आपने इस M पे लगा देना है 0, दूसरे M पर आपने लगा देना है 1। मसलन ये तो आपको मैं अपने NIC की मिसाल दे रहा हूँ। और आपने तीसरे Y के ऊपर अभी सन लिखना है। सन मतलब 2021 चल रहा है, तो आपका इशू डेट NIC की मसलन वो हुई है सन 2012 में, तो आपने एग्जाम्पल आपने 2 इस जगह Y पे डालना है, 2012 तो आगे आ जाएगा 0, आपने यहाँ पर 0 लिख देना है Y के ऊपर, और तीसरे Y के ऊपर आपने 2 लिख देना है, और चौथे Y के ऊपर आपने 2012 था तो आखिर में चूँकि 2 आता है तो आपने यहाँ पर 2 लिख देना है। जब आप ये लिख देंगे तो आपने क्या करना है, चूँकि अभी तो वो टाइम ख़त्म हो गया इसलिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ आ रहा है कनेक्शन प्रॉब्लम और इनवैलिड MMI कोड। तो आपने इसको छोड़ देना है, ये आपके पास नहीं आएगा। तो आपने फ़ौरन ये नंबर NIC का नंबर लिखने के बाद आपने इस जगह पर, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ चूँकि टाइम ख़त्म हो गया था, वीडियो बना रहा हूँ। इस जगह पर आपने इसको लिखने के बाद ये आपको यहाँ पर देखें जी, इस जगह पर है ये सेंड नज़र आ रहा होगा, तो आपने इसको कर देना है सेंड। आप जैसे ही इसको सेंड करेंगे, सेंड करने के बाद आपको कंपनी की तरफ से एक NIC और एक पिन कोड वसूल होगा। वो पिन कोड आपको कौन सी जगह पे मिलेगा, वो आपका मोबाइल के अंदर, जिस मोबाइल में विजयस की सिम होगी, मसलन जिस मिसाल के तौर पर जो आपके हाथ में मोबाइल होगा, उसी मोबाइल के ऊपर आपके पास एक पिन कोड आएगा, 4 हिस्सों का पिन कोड होगा। आपने उस पिन को क्या करना है, आपने उस पिन को अलहदा किसी कॉपी पे लिख लेना है ताकि वो आपको, क्योंकि 2 मिनट के बाद उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और चूँकि वो ज़रूरत सिर्फ एक दफ़ा पड़ेगी, बार बार नहीं पड़ेगी। और वो पिन क्यों होगा, वो पिन सिर्फ इसलिए होगा कि आपने न्यू पासवर्ड बनाना है। वो तो कंपनी की तरफ से था, लेकिन आपने न्यू पासवर्ड बनाना है, तो न्यू पासवर्ड बनाने के लिए आपको उन्हीं 4 हिस्सों की ज़रूरत पड़ेगी। अगला काम क्या करना है, अगला काम आपने ये करना है, आपने फिर दोबारा से एक दफ़ा हो जाने के बाद दोबारा से इसी फ़ोन की जगह पर आ जाना है। आपने इसको करना है ओके। ओके करने के बाद आपने लिखना है *786#, आपने यहाँ से कर देना है इसको ओके। इस जगह से मैं आपको निशान दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी सिम 1 के अंदर जैस की सिम है, तो आपने इसको करना है ओके। ओके करने के बाद, चूँकि मैं तो वैसे आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास अब ये सिस्टम लिखा हुआ नहीं आएगा, ये वाली इंग्लिश आपके पास लिखी हुई यहाँ पर नहीं आएगी। आपके पास लिखा हुआ आएगा प्लीज़
इंटर पिन कोड जो आपने अपनी कॉपी पर लिखा होगा, आपने वही पिन कोड यहाँ पर लगाना होगा। इस जगह पर मैं आपको निशान लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक पिन यहाँ आ जाएगी, दूसरी पिन आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तीसरी पिन आपकी यहाँ, चौथी पिन यहाँ। वो 4 हिस्सों की पिन होगी, आपने उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। आप जैसे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आपने दोबारा से इसी सेंड वाले बटन पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जहाँ मैं पेंसिल घुमा रहा हूँ, इसी सेंड वाले बटन को आपने फिर से दबा देना है। क्योंकि मैं अभी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ तो आपने ओके करना है। ओके करने के बाद वो आपसे कहेगा इसी जगह पर, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने नहीं मिलाना, आपने छोड़ देना है। दोबारा जब आप ओके करेंगे पिन मिलाकर, आपके पास ऑप्शन आएगा कि पासवर्ड दर्ज करें। उसका मतलब होगा कि आप अपना पासवर्ड अब बनाएं। तो आपने कोई 4 हिस्से ऐसे रख लेने हैं जो आपको बाद में याद रह सकें। तो आपने 4 हिस्सों का पासवर्ड कैसा लगाना है, मसलन 3636, कोई भी आप अपने 4 हिस्से रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, मसलन 1 2 3 4 या 7 8 9 0 या 4 दफ़ा 0, कोई भी 4 लगा सकते हैं। फिर आपने उसको ओके करना है, फिर वो आपसे कहेगा इसकी तस्दीक करें। तो आपने वही 4 हिस्से पासवर्ड में दोबारा लगाने हैं और आपने उनको कर देना है ओके। तो ओके करने के बाद आपके सामने ये वाली शेप मैं आपको छोटे मोबाइल में दिखा देता हूँ, लिखी हुई आ जाएगी। आपको छोटा मोबाइल नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। आपने इस जगह पर ये वाली स्क्रीन आपके सामने जब आ जाए, सेंड मनी, बिल पे, ये वाली आप तरतीबवार देखते जाएं। आपके सामने जब ये आ गई, अब आपका अकाउंट हो गया तैयार। अब आपका अकाउंट हो गया तैयार। अभी आपने क्या करना है, बस आपका काम हो गया ख़त्म, आपका अकाउंट बन चुका है, जैज़ कैश आपका भी अकाउंट तैयार है। अभी आपका काम क्या है, आपने इजी लोड कैसे करना है, बिल पे कैसे करना है, के इलेक्ट्रिक का बिल कैसे भरना है, मोबाइल फ़ोन में लोड कैसे करना है, दोस्तों को बैलेंस कैसे शेयर करना है। अगर आपका मीज़ान बैंक है, UBL है, अलाइड बैंक है, उसमें पैसे कैसे भेजने हैं, तो उसका तरीका आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे। दोस्तों अगर तो आपको हमारी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप इसको तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। और पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, 5, 6 आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।